بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ دلکش حسین انداز، ایسٹرن اور ویسٹرن کا حسین امتزاج۔ کراچی میں سجے فیشن ویک میں ماڈلز کی ریمپر واک نے سما رنگین کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راہل بیگ سے۔ راہل، ہمیں بتائیے گا۔ جس وقت ہم موجود ہیں ٹی ٹائپ کے سچے رنگا رنگ فیشن شو میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ اس خوبصورت فیشن شو کی ہوسٹ اور پاکستان کی معروف ماڈل اور اداکارہ سنیتا مارشل موجود ہیں۔ سنیتا، کیا کہیں گی کافی ٹائم کے بعد کراچی میں یہ فیشن شوز اور اتنی خوبصورت انداز سے اس طرح کے پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں، اور آج کے پروگرام کو آپ ہوسٹ بھی کر رہی ہیں، کیا کہیں گی؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ کووڈ کے بعد چونکہ اکانومی تھوڑی لو ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے فیشن شوز بھی نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب میرا خیال ہے وہ موقع آ گیا ہے کہ واپس سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بوم کر رہی ہے۔ سو سب سے پہلے تو آل دا بیسٹ ٹو آل دا ڈیزائنرز اینڈ دا کوریوگرافر اینڈ تھرو آل دا ماڈلز اینڈ ایوری بڈی ہو از پارٹیسپیٹنگ۔ بہت محنت کا کام ہوتا ہے یہ، کیونکہ میں نے اتنا عرصہ کیا ہے، سو آئی نو، اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ میں ریڈ کارپیٹ ہوسٹ کر رہی ہوں، تو میں شروع میں کافی نروس تھی۔ آئی تھنک یہ بھی ایک بہت ہی مشکل کام ہے، نان اسٹاپ بولنا جو کام آپ کرتے ہیں، سو بٹ اٹس فن، تو مزہ آ رہا ہے۔ بالکل جی، سنیتا مارشل ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خوشگوار سلسلہ ہے، اور کیا ہی بہتر ہو جس طرح سے وہاں سے آنے والے لوگ پاکستان میں پرفارم کرتے ہیں، اسی طرح سے پاکستانی ماڈلز دنیا بھر میں جا کر ملک کا نام روشن کریں۔ اس طرح کے پروگرام دونوں ملکوں کو قریب لانے کے ساتھ ساتھ تجارت اور سفارت کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ جی، اب آپ کو بتائیں گے شہر کاج میں موٹر سائیکل لفٹنگ کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ سچل پولیس کا کباڑی کے گودام پر چھاپا۔ کارروائی کے دوران 1000 سے زائد موٹر سائیکلوں کے پارٹس برآمد کر لیے گئے۔ گودام سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان سلیم سے۔ سلمان، ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں، بالکل اس وقت ہم سچل تھانے میں موجود ہیں، اور سچل پولیس کی جانب سے آج ایک گودام کے اوپر چھاپا مارا گیا۔ جب چھاپا مارا گیا تو پھر پتہ چلا کہ گودام جو ہے وہ ایک کباڑی کا ہے، اور وہاں پر لاتعداد موٹر سائیکلوں کے پارٹس جو ہے وہ موجود تھے، جن کو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے SHO سچل اورنگزیب کھٹک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اورنگزیب بھائی، کیا بتائیے گا کہ کن کن موٹر سائیکلوں کے پارٹس ملے ہیں اور کہاں کہاں سے لے کے آتے تھے یہ موٹر سائیکلیں؟ ہمیں انفارمیشن ملی کہ پنجاب بس اڈے کے پیچھے ایک گودام ہے جس میں موٹر سائیکل کے کافی پارٹس ہیں، اور جب ہم گئے وہاں پہ تو وہاں تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 1000 سے زیادہ موٹر سائیکلس کی پارٹس، مختلف پارٹس، جس میں ویل، اس کے بیرنگ، جو بھی چیزیں، ٹنکیاں، ہینڈل، یعنی موٹر سائیکل کی تمام پارٹس سوائے اس کے چیسز کے۔ تو چیسز کے بارے میں پتہ چلا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو میلٹ کر دیتے ہیں مختلف۔ اب جو ہماری انٹروگیشن ان سے ہوئی ہے سرسری، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ایڈکٹ قسم کے لوگ ہیں ان سے یہ خریدتے ہیں موٹر سائیکل، اور ان کے باقاعدہ پھیری کے اس میں کارکنان، یہ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں وہ گھومتے ہیں، اور اس طرح کسی جگہ کے اوپر جب ان کو موٹر سائیکل بیچنے والا ملتا ہے تو اس سے وہ موٹر سائیکل خرید کے یہاں لا کے اس کے ڈمپ کرتے ہیں، اور پھر ہفتے میں 1 دن 2 دن اس کو بذریعہ ٹرک اس کو اسپیئر پارٹس کے طور پہ اس طرح کر کے مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ کراچی کے شہریوں کی جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ یہ چھین کر کباڑیوں کو فروخت کرتے ہیں، جو کہ مختلف اس کے پارٹس مارکیٹوں کے اندر فروخت کرتے ہیں۔ تاہم اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے، پکڑنے کے لیے سچل پولیس سرگرم دکھائی دیتی ہے۔ جی، اب اپنے ناظرین کو بتائیں گے ہاری کارڈ پر کسانوں کو تمام سبسڈیز ملیں گے، اور سندھ حکومت کی ہاری کارڈ سے تمام کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ صوبے میں 40 زرعی تحقیقی ادارے کام کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر محمد بخش مہر کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ ایوان سے منظور آڈٹ رپورٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیج دی گئیں۔ لیاری ایکسپریس وے اور یونین کونسلز پر آڈٹ رپورٹ بھی منظور کر لی گئی۔ تفصیلات عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں۔ سندھ اسمبلی میں ہاری کارڈ کی گونج، کسانوں کو سبسڈیز ملنے کی نوید۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس آدھے گھنٹے کی تاخیر سے ڈپٹی اسپیکر نوید اینتھونی کی زیر صدارت ہوا۔ محکمہ زراعت اور بیورو آف سپلائز کے متعلق وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر نے مختلف ارکان کے سوالات کے جواب دیے۔ ہاری کارڈ 1 ونڈو آپریشن ہے، آپ کے جس ہاری کے پاس ہوگا وہ ہاری کارڈ، وہ نہ کہ صرف آپ کے جو آپ کو اس پہ لون ملے گا 50,000 پر ایکڑ، 2 لاکھ تک آپ کو لون، سافٹ لونز مل سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ ہاری کارڈ پر کسانوں کو تمام سبسڈیز ملیں گی۔ سندھ حکومت کے ہاری کارڈ سے تمام کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ صوبے میں 40 زرعی تحقیقاتی ادارے کام کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں وزیر قانون نے مختلف آڈٹ رپورٹس پیش کر دیں۔
4 रिपोर्ट्स को मंजूर कर लिया गया। PPHI कराची में बारिशों की हंगामी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट असेंबली में पेश कर दी गई। लियारी एक्सप्रेस वे और यूनियन काउंसिलों के बारे में ऑडिट रिपोर्ट मंजूर कर दी गई। तमाम ऑडिट रिपोर्ट मंजूर करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दी गई। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ऑन preparedness of government agencies to meet rain emergency in Karachi, audit year 2020-21. A special audit report on Liari Expressway resettlement project Karachi for the period of 2002-3. ऑपोजिशन लीडर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कमेटी के कयाम से लाइल्म निकले। वजीर दाखिला जिया लंजार ने अली खुर्शीदी को बताया, कमेटी बन चुकी, आप इसके मेंबर हैं। फयाज भट्ट की कराची से सखत ट्रेन चलाने की तहरीक अल्तवा मुस्तरद कर दी गई। एडजर्नमेंट मोशन सिंध गवर्नमेंट के साथ बनती नहीं है। इट डजंट कम विद द सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट का वास्ता ही नहीं है रेलवे से। जी बिल्कुल, लेकिन वो उसमें एडमिसिबिलिटी पे बात अगर मिनिस्टर साहब खुद ही कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बनती नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने एतराफ़ किया कि सूबे में गैर म्यारी और नकली खाद फरोख्त होती है। अहम क्योंकि अब्दुल वसीम के महंगाई के मुतालिक सवाल पर सूबाई वजीर ने कहा कि हम जुर्माने आयद करते हैं। राइस लाइ काफ़ी इक़दाम वरता विया आहिनि और इंशाल्लाह वरदासीं, भले उहे ॿिज जी सूरत में हुजनि, भले उहे खाद जी सूरत में हुजनि, सब्सिडी जी सूरत में, उहे भले तव्हांजे फर्टिलाइज़र जी सब्सिडी जी सूरत में हुजनि या तव्हांजे सॉफ्ट लोन जी सूरत में हुजनि, त इंशाल्लाह ताला असां इक़दाम वरता भी आहिनि। अब्दुल वसीम ने कहा कि एक दिन जुर्माना लगता है और दूसरे दिन वही दुकानदार महंगी अशिया फरोख्त करते हैं। Now the House is adjourned to meet again on Friday, the 25th October 2024 at 10 AM. डिप्टी स्पीकर ने इजलास जुम्मे के रोज सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। और नाजरीन, शाहजेब नकवी के लिए हर शख्स दुआ गो, हर आंख अश्कबार, फजा सोगवार। रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के साहबजादे की रस्म कुल हुई और कुरान ख़ानी, मग़फ़रत और बुलंद दर्जात की दुआएं की गई हैं। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। नकवी के लिए हर शख्स दुआ गो, हर आंख अश्कबार, फिजा सोग। रुकने कौमी असेंबली राना अंसार के साहबजादे की रस्म सोयम, कुरान ख्वानी, मग़फ़रत और बुलंदी दर्जात की दुआएं। साबिक सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने दुआ करवाई। रस्म कुल में मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात की शिरकत। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल की रुकने कौमी असेंबली राना अंसार के घर आमद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना था कि पिछले 5 साल हमारे साथ असेंबली में रही। राना बाजी के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है। हाँ, मतलब राना बाजी के लिए तो बहुत मुश्किल घड़ी है। बहुत इखलाक वाली पिछले 5 साल हमारे साथ असेंबली में थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनी, हमेशा मुस्कुराती हुई, कभी गुस्सा हमने नहीं देखा। गम में हैं और बस यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको सब्र अदा करे। पीपी रहनुमा रजा हारून ने कहा कि हम सब के लिए ये सुनना भी तकलीफ दे है कि उनका बेटा नहीं रहा। अल्लाह पाक अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। हम सब के लिए सुनकर जो तकलीफ है, जो हमें गम है, सुना नहीं जा रहा, तो हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक माँ पे क्या गुजर रही होगी और उसके दिल में क्या क्या सवालात उठ रहे होंगे, कितनी गमज़दा होंगी। हम उसको महसूस करीब भी नहीं जा सकते। उनके ख़ानदान के साथ, उनके दीगर बच्चों के साथ, उनके अहले खाना के साथ सिर्फ मैं समझता हूँ हमें ताज़ियत, हमदर्दी, उनका साथ देना चाहिए। बहुत मुश्किल घड़ी होती है। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी, रहनुमा नून लीग नेहाल हाशमी की भी आमद। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी भी रस्म कुल में शरीक हुए। अरकान असेंबली किरण मसूद, शारिक जमाल, इफ्तिखार अहमद, मोहित अनवर की शिरकत। कैफुल वरा, आसिया इसाक, फुरकान अतीब, कमाल अहमद, अब्दुल बासित भी मौजूद थे। रुकने कौमी असेंबली फरहान चिश्ती, माज महबूब ने भी शिरकत की। कारोबार के रजिस्ट्रेशन करा लें वरना बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। FBR ने गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों को टैक्स नेट में लाने के लिए डंडा उठा लिया। पावर कट ड्राइव शुरू कर दी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में।
FBR का गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर घेरा तंग करने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ बिजली मुनक़ता करने की ड्राइव शुरू। FBR हुकाम के मुताबिक सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने वाले कारोबार की बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तमाम मुतल्लिका चीफ कमिश्नर को हिदायत जारी। इदारे के मुताबिक फैसला कुन कार्रवाई गैर रजिस्टर्ड कारोबार को टैक्स नेट में लाने के लिए की जा रही है। लार्ज टैक्स ऑफिस, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, मीडियम टैक्स ऑफिस और रीजनल टैक्स ऑफिस के अफसरान को अहकामात मिल गए। FBR ने सनती कमर्शियल बिजली के कनेक्शन रखने वाले सार्फिन का डाटा जमा कर लिया। FBR के इब्तदाई जांच में शुबा जाहिर किया गया है कि 500 अफराद बगैर रजिस्ट्रेशन कारोबारी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। शक है कि ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं। उन्होंने सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 14 के तहत रजिस्टर्ड होने की शर्त पर अमल नहीं किया। जांच पर पूरा न उतरने वालों के बिजली मुनक़ता कर दिए जाएंगे। अशरफ खान, सिटी 21। 2 कतरे जिंदगी भर की माजूरी से निजात, पोलियो से बचाव का आलमी दिन। आगा खान अस्पताल पीडियाट्रिक्स और डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अली फैसल बोले कि रवा साल अब तक पाकिस्तान में पोलियो के 39 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पोलियो का वाहिद इलाज वैक्सीन है। फरहान खान। पोलियो से पाक और मजबूत पाकिस्तान ख्वाब जैसे हकीकत में बदलने लगा। 2 कतरे जिंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए काफी। दुनिया भर में पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी पोलियो के केसेस से लड़ रहा है। रवां साल अब तक पाकिस्तान में पोलियो के 39 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आगा खान अस्पताल पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अली फैसल ने बताया कि पोलियो का वाहिद इलाज वैक्सीन है। हर शख्स का, हर वालिद का, हर वालिदा का ये फर्ज है कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके वैक्सीन पिलाएं। जो रिफ्यूजल्स हैं उनके साथ मिलकर बात करने की ज़रूरत है। रेजिस्टेंस का इलाज जो है बात करने है। मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने, गवर्नमेंट के इदारों ने बहुत काम किया है और हमें मजीद काम करने की ज़रूरत है। सारे के सारे उलमा कराम चाहे किसी मसलक से हैं, उन सब ने फतवा भी दिया हुआ है कि वैक्सीन पिलाना बिल्कुल जायज़ है और वैक्सीन पिलाने से बच्चों को फ़ायदा होगा। पोलियो के केसेस में इजाफे पर महकमा सेहत सिंध की जानिब से 28 अक्टूबर से मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। वालिदैन से अपील की है कि पोलियो समेत तमाम लाजमी वैक्सीनेशन कराएं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। अब आपको बताएंगे मफरूर करार दिए गए 1000 से ज्यादा असातिज़ा की फिर स्क्रूटनी का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम अब्दुल करीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम को कार्रवाई के लिए पेश की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट में। 1370 असातिज़ा मफरूर करार। सिंध हुकूमत का असातिज़ा की दोबारा स्क्रूटनी का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। 30 इजला के मॉनिटरिंग और ज़िली तालीमी अफसरान से रिकॉर्ड तलब। रिकॉर्ड सेशन ऑफिसर सईद मेमन के दस्तखत से खत इरसाल करके तलब किया गया। स्क्रूटनी के बाद रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम को पेश की जाएगी। सेक्रेटरी स्कूल तालीम कार्रवाई का फैसला करने का मजाज होगा। मुकामी इंसामिया ने मफरूर असातिज़ा की तनख्वाहें बंद करने की सिफारिश की थी। कराची के 7 इजला से 168 असातिज़ा को मफरूर जाहिर किया गया। शर्की से 48, वस्ती से 29, कोरंगी से 44 असातिज़ा गुमशुदा करार। मरीज से 25, केमाड़ी से 26, जनूबी कराची से 5, गरबी से 9 असातिज़ा मफरूर। हैदराबाद से 115, लाड़काना से 93, सक्कर से 4 असातिज़ा मफरूर निकले। मीरपुर खास से 43, थर पार्कर से 10 समेत दीगर जिलों से असातिज़ा गुमशुदा निकले। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। केपीटी नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप मैच देखने गवर्नर केपी के फैसल करीम खान कुंडी के केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने खिलाड़ी की हौसला अफजाई की। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। 7वें केपीटी नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खान कुंडी की केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमद। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, बहुत से लोगों को मालूम नहीं सॉफ्टबॉल भी पाकिस्तान में खेली जाती है। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करना चाहते हैं। केपीके में 15 साल से मैदान आबाद नहीं हुए। अगर केपीके में ऐसे टूर्नामेंट हो तो बाकी सूबों से भी लोग यहाँ आएंगे। पर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू थी। बहुत से लोगों को शायद ये मालूम ना हो, हमारे जो यहाँ के रहने वाले या कुछ के सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट्स भी जो है पाकिस्तान में खेले जाते हैं। फैसल करीम खान कुंडी का कहना था, पीसीबी चेयरमैन से दरखास्त करूंगा पीएसएल का एक मैच केपीके में कराया जाए। कौमी टीम में काफी खिलाड़ी केपीके से हैं। कैमरामैन मोहम्मद शरियार के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। शहरी कायद को साफ सुथरा और माहौल दोस्त बनाने का अज़्म। सिंध सॉलिड वेस्ट में शाहराह कायदीन और सिग्नल फ्री को
डोर 3 की मसरूफ सड़क से 60 बरस पुरानी कच्चा कुंडी का खात्मा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर की हिदायत पर शाराए कायदीन और सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 के दरमियान से 60 साल पुरानी कचरा कुंडी का खात्मा कर दिया गया। चेयरमैन यूसी 11 जिना टाउन नुमान हमीद बोले, अवाम की सहूलत के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मिलकर काम किया है। अरसा दराज से मसला था और यहाँ पर मुस्तकिल कचरा रहता था क्योंकि एक बड़ी आबादी है लाइन्स एरिया की यहाँ पर, तो ये जो भी इनकी स्कीम है सिंध सॉलिड की, लेकिन वो उसको अमलन नहीं कर पाते थे। तो हमने कहा इसको कचरा कुंडी को यहाँ से ख़त्म करें। जमात इस्लामी ने इस मसले को टेकअप किया और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि अब तमाम इदारे ऑन बोर्ड हो गए और ये इंशाल्लाह यहाँ से कचरा कुंडी मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो गई है। डिप्टी डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट जमशेद जून आमिर अब्बास ने बताया कि इससे कबल भी कई कचरा कुंडियां खत्म की जा चुकी हैं, जबकि नुमान वहीद बोले कचरा कुंडी की जगह माहौल दोस्त पौधे लगाए जाएंगे। लिफ्ट डेली के हमारे घर से 12 से 13 डंपर ऐसे हम लिफ्ट करते थे दिन के अंदर, और अब खत्म करने का मुतालबा अवामी लोगों के साथ मिलकर हमने खत्म कर दिया है, क्योंकि अभी हम एक जगह भी दूसरी दे रहे हैं जहाँ हम नई कचरा कुंडी बनाएंगे। सॉलिड वेस्ट ने तो अपना काम भरपूर तरीके से अंजाम दिया है और इस कचरा कुंडी को, डंपिंग पॉइंट को जो एक लंबे अरसे से था ये इशू, इसको ख़त्म कर दिया। अब इंशाल्लाह यूसी चेयरमैन साहब के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में हम इसको सबसे में मसरूफ शाहराहों से कचरा कुंडी के खात्मे से ट्रैफिक रवानी में बेहतरी और सड़क फुटपाथ की टूट फूट की रोकथाम होगी, जबकि मोहल्ले का आबादी ने भी सुकून का सांस लिया है। कैमरामैन झांजेब के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मच्छरों से निजात, सोगो लेकर आया पुरसुकून रात का पैगाम। सोगो ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से दुकानदारों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब में सोगो की अशिया फरोख्त करने वालों को बजरिया खुरंदाजी तोहफे तकसीम किए गए। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। शहर में मच्छरों की बहुतात से बचाव का अज़्म। सोगो ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मच्छरों से बचाव के लिए कॉइल और स्प्रे मुतारिफ करवा दिया, जिसकी फरोख्त में बेहतरीन कारकर्दगी पर दुकानदारों में तोहफे तकसीम किए गए। सोगो की तकरीब में शहर भर से 377 डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदारों को तोहफे तकसीम किए गए। डायरेक्टर प्लानिंग आफान जाफरी के मुताबिक 3 उम्रा पैकेज, 17 मोटरसाइकिलें, 61 मोबाइल फोन्स, 14 गोल्ड के सिक्के और कैश प्राइजेस से नवाजा गया है। डायरेक्टर मार्केटिंग अवैस अफजल ने कहा, शहर में मच्छरों की अफजाइश से तेजी से फैलती बीमारियों के खात्मे के लिए हर शख्स तक इसके बचाव के लिए कॉइल और स्प्रे मुतारिफ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज गालबन कोई ऑलमोस्ट 222 लोगों को, यानी कि 222 लोगों को जो है वो प्राइजेस मिल रहे हैं मुख्तलिफ, जिसमें घर की अशिया है, सोना भी है, गोल्ड भी है, उम्रे के पैकेजेस हैं, डिफरेंट जो है वो इसमें गिफ्ट्स हैं। शाम के टाइम कॉइल ज़रूर जलाएं। मगरिब के टाइम जो मच्छर आता है वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया लेकर आता है। अगर हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं शाम में खेलने के लिए तो उनको लोशन ज़रूर लगाएं। साशे 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक होते हैं। अच्छे पाकिस्तानी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। हमारा ब्रांड सोगो ज़ैपिड है, इसके अलावा और ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं जो कि अच्छे मयारी प्रोडक्ट्स हैं। तकरीब में बरकत और उज़मी ने अपनी शानदार कॉमेडी से खूब दाद समेटी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में 5वीं टेक्सपो पाकिस्तान नुमाइश जारी। फैशन और टेक्सटाइल से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स ने अपने बनाए मलबूसात पेश कर दिए हैं। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। कराची के एक्सपो सेंटर में आलमी नुमाइश के दूसरे रोज भी गहमा गहमी। सनतकारों के साथ टेक्सटाइल और फैशन के शोबे से वाबस्ता तलबा भी अपनी मुनफरिद मसनूआत सामने ले आए, खुसूसी मलबूसात पेश किए। तलबा का कहना था कि इस तरह की नुमाइश में हिस्सा लेने से खुद एतमादी में इजाफा होता है। माहौल दोस्त और रिसाइकिल कपड़ों से मलबूसात तैयार किए हैं। एक्सपोजर मिलता है काफ़ी हमारे लिए, और बाकी लोग आते हैं वो बाय करना चाहते हैं लेकिन इस सेलिंग के लिए नहीं है। हम लोग टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से हैं और हम लोगों का काम, हम लोग की थीम असल में जो इको चेंजेस हो रहे हैं पाकिस्तान में उसकी बेसिस पर है। बहुत अच्छा है, होना चाहिए। इसी तरह बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। जो लोग आते हैं दूसरे मुल्कों से और वो ये देखते हैं और इसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होता है। गैर मुल्की मंदूबीन ने स्टूडेंट्स के काम को बेहद सराहा। In fact, what I saw here is just incredible, and the use of recycled products, bottles and things to make this, I think they are doing very well, and I would love to have more conversations. 3 रोजा नुमाइश से जहां ज़र मुबादला में इजाफे के लिए कोशिशें की जा रही हैं, वहीं तलबा के मलबूसात इनकी खुद एतमादी में इजाफे का सबब बन रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21।